Assalamualaikum everyone, hope you are doing well. आज हम immunology जो है वो पिछले lecture में हमने थोड़ा सा पढ़ा था and I'll continue that. I hope to finish it today, but let's see. I have modified it a bit to just make it easy for you people to understand because ये थोड़ा सा haphazard थी slides. So basically, if I So basically, if I can describe to you what immunology or what immunity is, so there are two basic types. एक आपकी innate immunity होती है और एक आपकी adaptive immunity होती है. Innate immunity क्या होती है? जो कि that is always present, मतलब आपकी body के अंदर जब भी एक कोई भी foreign object enter होगा, कोई भी bacteria, pathogen, virus, anything, whatever that is entering your body, whenever it enters your body, what the immune reaction that will happen, no matter what kind of thing is entering your body, is referred to as innate immune response. उसके अंदर जो है आपके पास हमने पढ़ी थी कि ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम होता है जो कि इमीडिएटली एट प्ले होता है और विद इन आवर्स ऑफ एन एंटीजन्स अपीयरेंस इन द बॉडी. These mechanisms include physical barriers such as skin, chemicals in the blood, immune systems that system cells that attack the foreign cells in the body and occurs rapidly. It has no memory, no immunological memory. Memory के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, मैं आज दोबारा एक रिकॉल भी दूंगी. सो इनेट इम्यूनिटी ये होती है जो कि हमेशा होती है. उसमें एग्जांपल्स आपके पास कौन कौन सी थी? फॉर एग्जांपल जो आपका स्किन सरफेस है वो था. उसके अलावा आपके जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं आपके स्किन के ऊपर वो थे. फिर जीआई और रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो पेरिस्टालसिस है, सीलिया की मूवमेंट है वो थी. और जो गट की जो फ्लोरा है उस कैन यू प्लीज कीप क्वाइट? मतलब I don't know. Mohammed Amir Tahir, please try to listen and try to keep quiet. I really don't know what you guys are doing. Okay. सो गट फ्लोरा के बारे में हमने पढ़ा था कि जो होता है जो आपका जीआईटी होता है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सर्टेन मोर डिजास्ट्रस बैक्टीरिया, और वो जो हैं वो एज सच हार्मलेस होते हैं फॉर योर बॉडी. फॉर एग्जांपल टीयर्स होते हैं, जो टीयर्स और सलाइवा का जो फ्लशिंग एक्शन है हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन इन आईज इन द माउथ. The system does not provide long-lasting immunity to the host. Innate immune system provides immediate defense against the infection. इसके अलावा इसके अंदर जो inflammation जो हमने बहुत डिटेल में in our initial lectures we have studied, inflammation भी innate immunity का part है. फिर complement system भी innate immunity का part है, और ये certain cell types हैं जो कि innate immunity के अंदर that play a role. Okay. अब हम I'll go back to there are two types of immune responses, innate immune responses and adaptive immune responses. मैंने थोड़ा सा innate immune responses को recall किया है. अब adaptive immune responses क्या होती है कि ये basically एक specific immune response है. It is a subsystem of the overall immune system that is composed of highly specialized systemic cells and processes that eliminate the pathogen. So basically what it is doing is कि for example if my body is attacked with the COVID virus, उसके अंदर कोरोना वायरस जो है वो enter हो गया है, तो my body will produce a specialized response against that particular virus. और अगर मेरी बॉडी में फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स का वायरस, स्मॉल पॉक्स तो खैर इरेडिकेट हो गया वर्ड से, फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स का वायरस जो है वो मेरी बॉडी के अंदर जो है वो इन्वेट करता है, तो माय बॉडी विल प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक रिस्पांस अगेंस्ट दैट वायरस. सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है जो कि टीबी कॉज करता है, अगर उसका जो बैक्टीरियम है वो मेरी बॉडी में एंटर होगा, तो my body will produce a specific immune response against that particular organism. So that
is referred to as adaptive immunity. अब adaptive immunity के अंदर जो हैं दो components आपके होते हैं, एक होता है humoral immune response और एक होता है cell mediated immune response. आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने ये याद करना है कि जो आपके बी lymphocytes होते हैं, obviously we have studied about lymphocytes in detail as well, कि there are two types of lymphocytes, one is the B lymphocytes and the other is the T lymphocytes. B lymphocytes जो हैं वो bone marrow में mature होंगे और T lymphocytes जो होंगे वो thymus में mature होंगे. So जो B lymphocytes है, they are associated, they always play a role in humoral immune response, और जो T lymphocytes होंगे they play a role in the cell mediated immune response. The adaptive immune system is highly specific to a particular pathogen, more specifically an antigen. Basically, मैंने आपको बताया कि वो highly specific होता है to a particular pathogen, but इसका ये मतलब है कि वो जो है वो उस pathogen के ऊपर जो antigen लगा हुआ है, एक particular antigen होता है जो कि जिसके लिए वो specific होता है. It can also provide long-lasting protection, formation of the memory cells. We have discussed about memory cells as well. आप लोगों को पता होगा at some point from your previous knowledge. So, for example, this rat was infected by parasites, fungi, bacteria, viruses, uh, foreign proteins. तो इसके अंदर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो हुआ उसका जो है ये रैट का जो एक पर्टिकुलर एंटीजन था उसके अगेंस्ट जो थे बी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए हैं. ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में बी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए हैं और उन्होंने क्या किया है कि वो डिफरेंशिएट हो गए हैं इनटू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लाज्मा सेल्स. बी सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ बी सेल्स होते हैं. So the B cell that is specific to this particular antigen from that is responsible for causing the disease, जो कि इनमें से किसी भी चीज का जो भी इसको रैट को अफेक्ट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है व्हाट विल हैपन इज कि दिस विल बिकम स्पेशलाइज्ड एंड दिस विल डिफरेंशिएट इनटू समथिंग कॉल्ड द प्लाज्मा सेल और वो जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और इवेंचुअली जो है वो जो पर्टिकुलर एंटीजन था जिसके अगेंस्ट वो प्रोड्यूस हुआ था उसको वो किल करने में हेल्प करेगा. But what is happening in case of a cell-mediated immune response is that we have something called T cells. T cells, there are basically cytotoxic T cells, जो कि killer T cells होते हैं. वो जो होते हैं वो जो infected cells होते हैं जो कि मतलब for example इस रैट के अंदर या इस माउस के अंदर जो भी infected cells होंगे मोस्टली जो virally infected cells होंगे उनको वो किल करेगा, उनका वो लाइसिस करा देगा, वो डायरेक्टली सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है. जबकि जो प्लाज्मा सेल होता है वो पर्टिकुलर एंटीजन के साथ जाके बाइंड करता है, मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा जो कि एंटीजन के साथ बाइंड करेगी और इवेंचुअली जो है वो फेगोसाइटोज होगा. बट ये डायरेक्टली जो है वो सेल का जो है किलिंग के लिए जो है that is responsible for the direct killing of the cell, hence the name the cytotoxic T cell, because ये जो है वो cell के लिए toxic है. So humoral immunity is triggered by B cells while cell mediated immunity is triggered by T cell. The main difference between the humoral and cell mediated immunity is that the antigen specific antibodies are produced in humoral immunity, whereas antibodies are not produced in cell mediated immunity. Okay. B cells play a major role in humoral immune response, whereas the T cells are intimately involved in cell-mediated immune response. ये चीज हम already पढ़ चुके हैं कि the cells of the adaptive immune system are T and B lymphocytes. B cells and T cells are the major types of lymphocytes. The human body has about 2 trillion lymphocytes, constituting about 20 to 40% of the white blood cells. Their total mass is about the same as the brain or the liver. The peripheral blood contains 2% of the circulating lymphocytes. ठीक है, so basically the adaptive immune response, uh, they, the adaptive immune response is comprising of basically two types of lymphocytes, the B lymphocytes and the T lymphocytes. Okay, now we'll study about T lymphocytes. क्या होते हैं? Obviously, we have already studied कि they are involved in cell-mediated immune response. अब इसके आगे further जो है T lymphocytes की दो categories हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती हैं.
One is the CD4 positive T cell, and the other is the CD8 positive T cells. The CD4 positive T cells help make B cells make antibodies and produce cytokines to recruit phagocytes and activate other leukocytes. So basically, what is happening is कि जो है CD4 T cells को आप helper T cells भी कहते हो, उनका काम क्या है कि वो जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कैरी आउट कर रहा है आपके बी सेल्स, उनको उस इम्यून रिस्पॉन्स को कैरी आउट होने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है। साइटोकाइंस क्या होते हैं? बेसिकली सेलुलर मीडिएटर्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के अंदर काम करते हैं। आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर की थी इसके ऊपर। एंड इसके अलावा क्या करता है कि जो फेगोसाइट्स को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो लाता है, ताकि जो है फेगोसाइटोसिस जो है वो हो सके, और अदर वाइट ब्लड सेल्स को जो है वो एक्टिवेशन के काम का काम करता है। CD8 पॉजिटिव टी सेल को आप साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हो, जो कि डायरेक्टली किल करेगा वायरस इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स वाया परफोरिन। ठीक है, ये ट्यूमर सेल्स को और वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को जो है वो डायरेक्ट किलिंग के अंदर जो है इट हैज़ अ रोल टू प्ले। So CD8 T lymphocytes and cytotoxicity. Cytotoxic T cells that induce death of the cells that are infected with viruses as well as the tumor cells. Helper T cells or CD4 positive T cells. These cells have no cytotoxic or phagocytic activity and cannot kill. Basically, इनकी अपनी कोई as such कोई killing activity नहीं है। ये सिर्फ हेल्प करते हैं बाकी एक्टिविटीज को कैरी आउट होने में, but they are really important, because if they are not present then the other activities will not be carried out. So hence इनका रोल जो है वो सिर्फ एक हेल्पर के तौर पे नहीं है। मतलब इनको कहते हैं हम हेल्पर हैं, लेकिन अगर आप इन अ सेंस देखें तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। they cannot kill infected cells or clear pathogens, but in a sense, manage the immune system by directing other cells to perform these tasks. For example, by helping the B cells to make antibodies and produce cytokines to recruit phagocytes and activate other leukocytes. They differentiate into TH1 and TH2 subtypes. ठीक है? So basically, ये थोड़ी एक complicated differentiation है. I didn't want to make things more complicated for you people. So basically, for the helper T cells, for at your level, you should know that there are two major subtypes. We have two other subtypes referred to as the TH17 and TREG, but इसके अंदर it is you should only remember this diagram. इसके अंदर आगे के TH17 और TREG जो हैं क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते, you should not try to remember that. उसमें आप लोगों को TH1 और TH2 का जो रोल है, I'll teach you in detail, but for this diagram is more than enough. So you should know कि TH1 जो है for example वो इंटरफीरॉन गामा जो है वो रिलीज करता है, TH17 इंटरल्यूकिन 17 रिलीज करता है, TH2 जो है वो इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करता है, और ट्रैक जो है इंटरल्यूकिन 10 रिलीज करता है, और अगर अनडिफरेंशिएटेड हेल्पर सेल हो तो दैट रिलीजेस इंटरल्यूकिन 2। So जो TH1 response होता है, that is characterized by the production of interferon gamma, जो हमने already पढ़ लिया है, which activates the bactericidal activity of macrophages. ठीक है, उन्होंने क्या करना है कि जो macrophages होते हैं, जो हम एक macrophages basically आपका वही cells of immune system है, आपके white blood cells का एक type होते हैं। उनको जो है वो उनकी जो बैक्टीरियासिडल एक्टिविटी होती है, उनकी मतलब बैक्टीरियासिडल का क्या मतलब होता है, द बैक्टीरिया किलिंग एक्टिविटी, उसको वो एक्टिवेट करता है एंड इंड्यूसेस द बी सेल्स टू मेक ऑप्सोनाइजिंग एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, सो इनको क्या करेगा कि ये बी सेल्स को हेल्प करेगा टू मेक एंटीबॉडीज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट एज वेल, and leads to cell mediated immunity. In general, Th1 responses are more effective against the intracellular pathogens, bacteria, and viruses that are inside the host cell. So, the important thing to remember about the Th1 helper cells is कि जो है they are more effective against the intracellular organisms, जो कि सेल के अंदर organisms होंगे उनके against जो हैं ये ज़्यादा effective होते हैं।
और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि दे आर basically releasing mainly interferon gamma. Then you have helper type 2 cells. They are characterized by the release of interleukin 5 जो कि इंड्यूस कर रहा है eosinophils in the clearance of parasites. ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये basically जो है it is more important in defending against the extracellular bacteria or parasites. For example, क्या कहते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग हेलमेंट्स एंड टॉक्सिन्स. ये प्रोड्यूस करेगा इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 4 को. ठीक है, आगे क्या चीज आती है आपके ये नेट इम्यूनिटी जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. ओके, अब ये जो है एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी जो है इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं इस डायग्राम के अंदर, इस टेबल के अंदर मैंने ऐड की हैं. सो बेसिकली लास्ट टाइम जो है वो थोड़ी कंफ्यूजन चल रही थी कि जो वैक्सीनेशन होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है या पैसिव इम्यूनिटी होती है. सो वैक्सीनेशन जो है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, बिकॉज जब आप वैक्सीनेशन देते हो एक बंदे के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के जो है डेल्टॉइड के ऊपर आप लोगों को नजर आता होगा एक वैक्सीनेशन का निशान है जो हर एक बच्चे के होता है. सो बेसिकली दैट इज द BCG वैक्सीन दैट इज गिवन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, जो कि हमारी कंट्री में हर एक बच्चे को दिया जाता है. अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करोगे तो वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ये वाला वहाँ पे ये वाला मार्क नहीं होता. सो जो हमें ये मिलता है ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन. सो व्हाट इज हैपनिंग इज के जो आप वैक्सीनेशन के अंदर जो है एक अटेनुएटेड सॉर्ट ऑफ बैक्टीरियम जो है, अटेनुएटेड क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एक होता है कि एक्टिव बैक्टीरिया है उसके अंदर पावर है टू कॉज डैमेज, बट अटेनुएटेड के अंदर क्या होता है कि वो बैक्टीरिया तो है लेकिन उसके अंदर जो है द एबिलिटी टू कॉज डैमेज और द एबिलिटी टू कॉज डिजीज जो है दैट इज नॉट देयर. या उसमें हम कभी कभी किल्ड वैक्सीन यूज करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल किल्ड बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, या हम सिर्फ बैक्टीरिया का जो है सिर्फ एंटीजन जो सिर्फ वो पार्ट जो है जो एंटीजन है जिसने इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करना है हम उसको उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वंस वी inject it inside the body, so it is responsible for causing a specific adaptive immune response against that. So that is that eventually causes immunological memory. So when you are actually exposed to that particular bacterium or particular organism, आपकी जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है उतनी स्ट्रांग होती है कि आप जो है उसके अगेंस्ट जो है वो एक फुल फ्लैज जो अटैक है वो कर सकोगे और आपको सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर नहीं होंगे. सो आई ब्रीफली गो अगेन थ्रू दिस टेबल. सो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है इट इज प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, बट पैसिव इम्यूनिटी जो होती है इट इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द होस्ट एंड इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट. सो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं पैसिव इम्यूनिटी के अंदर वो ब्रेस्ट मिल्क होता है. जब आपका क्या कहते हैं जब आपका जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो है मदर इम्यूनोग्लोब्यूलिन उसके अंदर जाती हैं फॉर अबाउट 6 months. इसके अलावा जो है प्लेसेंटा के थ्रू भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज इनटू द फीटस. इसके अलावा जो है अगर आप जो है वो टॉक्सॉइड आप लगाते हो जब अगर आप किसी जैसे आपने स्नेक वेनम का पिछली दफा बात की थी, तो दैट इज ऑल्सो जो रिस्पॉन्सिबल फॉर पैसिव इम्यूनिटी. जब अगर आप टेटनस का जब शॉट देते हो एक पेशेंट को, अगर कोई बच्चा जो है गिरता है किसी गंदी जगह पे तो आप टेक्सस की प्रिवेंशन सॉरी टेटनस की प्रिवेंशन के लिए जो टेटनस टॉक्सॉइड देते हो वो भी बेसिकली टेटनस का जो है वो एंटी टॉक्सिन होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम बीइंग. So it is induced by infection or in contact with immunogen, for example vaccine या जो है वो toxoids. Conferring by introducing ready to made antibody, example antitoxin and humanized monoclonal antibodies. जब हम specific antitoxins या antibodies जो है introduce कराएंगे तो that is basically passive immunity. Immune response is durable and effective. Immune response is short-lived and less effective. Immunity develops only after a long time. Immunity develops immediately. Immunological memory is presumed. No immunological memory serves no purpose in immunodeficient host. Applicable in immunodeficient host.
No inheritance of immunity may be acquired from the mother, example IgA in the breast milk and IgG through the placenta. This is just a recall of what we have already studied. T lymphocytes जो होते हैं thymus drive lymphocytes होते हैं, they have a role in cellular and cell mediated immune responses. This constitutes about 60 to 70% of the peripheral lymphocytes. They differentiation में क्या होता है कि helper T cells are essential to the differentiation of B cells into plasma and their subsequent secretion of antibodies. Each helper T cell is capable of activating hundreds of specific B cells. Each helper T cell is capable of activating hundreds of specific B cells. The T cells that remain potentially active and viable even after antigens have been inactivated upon second encounter, memory cells proliferate, differentiate into plasma, and secrete antibodies so rapidly that the symptoms of the disease may not even be observed. Okay. Now, just I'll go through this table briefly. T cells के अंदर CD4 positive helper T cells and CD8 positive cytotoxic T cells. ये कहाँ से आ रहे हैं? Bone marrow से basically produce होते हैं और mature करते हैं thymus के अंदर. कहाँ कहाँ present होते हैं? Peripheral blood के अंदर होते हैं, bone marrow में होते हैं, thymus में होते हैं. Paracortex of the lymph nodes and Peyer's patches. Peyer's patches जो हैं ये lymphoid tissues होते हैं within your इंटेस्टाइन्स के अंदर स्पेसिफिकली आइलियम के अंदर जो है आपके जो है वो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जिनको आप पायर्स पैचेस कहते हो. इनका फंक्शन क्या है? CD4 पॉजिटिव सिक्रीट इंटरल्यूकिन सिक्रीट साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 2 जो कि बेसिकली प्रोलिफरेशन करा रहा है CD4 और CD8 सेल्स की. इंटरफेरॉन गामा जो कि एक्टिवेशन करा रहा है मैक्रोफेजेस की. They help the B cells become antibody producing plasma cells. और CD4 positive T cells क्या करते हैं? वो किल virus infected cells, neoplastic and donor graft cells. ठीक है. So basically जो three classic examples हैं of the CD4 positive immune response is the virus infected cells और the cancer cells जिसको आप neoplastic cells कहते हो. Cancer को neoplasia भी कहते हैं. और जो अगर आपका किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, फॉर एग्जांपल एक बंदे का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उसकी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो रही है तो उसके अंदर वो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज के जो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स हैं वो आपके जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को डैमेज कर रहे हैं. बी सेल्स कहाँ से होते हैं? ये आपके बोन मैरो से डिराइव्ड होते हैं. पेरिफेरल ब्लड में है, बोन मैरो में है, जर्मिनल फॉलिकल्स इन द लिम्फ नोड्स, पायर्स पैचेस. सो you should remember the T cells हैं, they are present in the paracortex of the lymph nodes, whereas the B cells are present in the germinal follicles of the lymph nodes. Okay. So what is happening is they are differentiated into plasma that produce immunoglobulins to kill encapsulated bacteria. For example, Streptococcus pneumoniae act as antigen presenting cells that interact with CD4 positive T cells. ठीक है. So बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो है ये एंटीजेंस प्रेजेंट करेंगे टू CD4 पॉजिटिव टी सेल्स ताकि CD4 पॉजिटिव टी सेल्स जो है वो हेल्प करें इनको इनटू डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स. फिर नेचुरल किलर सेल्स आते हैं. ये बेसिकली आपके इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट होते हैं. So they are derived from the bone marrow stem cells. They are present in the peripheral blood. They kill virus infected and neoplastic cells. ठीक है. So they have a role more or less like the CD8 positive T cells, but they are non-specific. और ये जो है basically they are a part of the innate immune response. Then you have macrophages, conversion of monocytes into macrophages in connective tissue. Connective tissue organs में connective tissue वगैरह में present होते हैं. Or involved in phagocytosis and cytokine productions. Then you have the dendritic cells. ये bone marrow से derived होते हैं. Skin में इनको Langerhans cells कहते हो और ये act as antigen presenting cells. ये हमने पिछली दफ़ा इनकी जो है morphologies हमने study की थी कि ये क्या क्या होते हैं. Okay. एंटीबॉडीज कौन कौन सी ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? आपके स्प्लीन प्रोड्यूस कर रही है, लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और बोन मैरो प्रोड्यूस कर रही है. टिश्यू लाइक पायर्स पैचेस है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. अपेंडिक्स जो है वो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है. थाइमस, these structures contain lymphocytes, macrophages and plasma cells.
इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं एंटीबॉडीज़ के बारे में कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है। एंटीबॉडीज़ जो आप लोगों ने टर्म जो है बार बार सुनी होगी थ्रू आउट योर मेडिकल करियर इज़ एंटीबॉडीज़ एंटीबॉडीज़। एंड एंटीबॉडीज़ बेसिकली जो हैं आप उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मोर और लेस आप रेफर करते हो एज इम्यूनोग्लोबुलेंस, ठीक है। But there is a very fine difference between antibodies and immunoglobulins. So immunoglobulins are synthesized by the plasma cells and also by the lymphocytes. So basically immunoglobulins जो हैं वो आपके प्रोड्यूस करने हैं प्लाज्मा सेल्स ने, जो कि डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं फ्रॉम द बी lymphocytes. All antibodies are immunoglobulins, but all immunoglobulins may not be antibodies. इसका मतलब क्या है कि the main difference between immunoglobulin and antibody is that immunoglobulin has a transmembrane domain in order to be attached to the plasma membrane, whereas antibody does not have a transmembrane domain. ठीक है, so basically what is happening is कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके अंदर एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन नहीं होता, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर डोमेन है जो कि उनको अटैच करता है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट अप इज कि हमारी जो है कौन कौन सी एंटीबॉडीज जो हैं, कौन टाइप्स जो होती हैं, आप लोगों ने सुनी होंगी इनमें से आईजीएम और आईजीजी, तो आई एम श्योर आप लोगों ने एट सम पॉइंट इन योर लाइफ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होंगी. So there are five basic types of antibodies that are responsible for carrying out the immune responses within our body. IgG है, IgM है, IgA है, IgD है और IgE है. ठीक है, ये पांच मेजर आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आपके प्लाज्मा सेल्स. इनके आगे जो है हमने पढ़नी है कि क्या क्या जो है इनकी फीचर्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं. सो आईजीजी जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और अबाउट 70% है ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबुलेंस. इट हैज़ द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 21 days. इट हैज़ द लोएस्ट मोलेकुलर वेट एंड फाउंड इन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी. ठीक है, सो बेसिकली इसका जो वेट है वो सबसे कम है और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी के अंदर वो सबसे ज़्यादा है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो सबसे छोटी है. इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर जो है of a fetus it plays a role and provides much of the maternal antibodies. It provides passive immunity of to the infant. It is responsible for late immune response, bivalent in structure, four subclasses, G1, G2, G3, and G4. So the important things were, okay, this is the antibody that is present in the fetus that crosses the placenta and is responsible for providing the passive immunity to the fetus. इसके बाद जो है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये मोस्ट इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है विद इन द बॉडी एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट इम्यून रिस्पॉन्स. मतलब बाद में जब इम्यून रिस्पॉन्स एक ट्रिगर हो चुका होता है तो जो लेटर स्टेजेस होती है उसके अंदर जो है इसका जो रोल है वो होता है. अब आईजीए क्या होता है? आईजीए जो है बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी सिक्रीशंस. फॉर एग्जांपल मिल्क में होता है. सो जो मदर मैटरनल मिल्क होता है जो बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, दैट इज बेसिकली हैविंग आईजीए. टीयर्स के अंदर है, सलाइवा में है, यूरिन में है, बॉडी सिक्रीशंस के अंदर ये प्रेजेंट होता है. इट प्रिवेंट्स द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस टू द म्यूकस मेम्ब्रेन. सो बेसिकली जो है अगर आपके बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं और फॉर एग्जांपल वो एंटर हो रहे हैं थ्रू द फेरिंग्स, मतलब रेस्पिरेटरी पैसेजेस के थ्रू दे आर एंटरिंग इनटू द बॉडी, तो जो है मेरी बॉडी के अंदर आईजीए जो होगा वो उसको उस बैक्टीरिया को फॉर एग्जांपल मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होने के लिए उससे प्रिवेंट करेगा. The most produced immunoglobulin overall, but lesser serum concentration. So the important thing to note is that it is uh, it is the most produced, मतलब सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर जो हो रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन वो आईजीए है, लेकिन स्टिल जो कॉन्सेंट्रेशन जिस इम्यूनोग्लोबुलिन की सबसे ज़्यादा है दैट इज आईजीजी. It is also called secretory immunoglobulin.
Antibacterial and antiviral in action present either as monomer or डाइमर, मतलब सिंगल स्ट्रक्चर हो सकता है या दो स्ट्रक्चर्स भी इसके हो सकते हैं. मेजरली जनरेटेड इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहा है. Okay, then you have the IgM. It is produced in the primary immediate immune response. Important to note कि जो IgG था वो के late immune response में आता है, मतलब थोड़ा सा later down the road जो है वो present होता है. But IgM जो है immediate immune response, जो primary immune response जो होता है, अभी हम primary और secondary immune response के बारे में हम पढ़ेंगे आगे. छोटा सा concept है, I'll teach you people. इसका जो molecular weight है वो सबसे highest होता है. हमने पढ़ा था कि सबसे छोटा जो molecular weight है that is of IgG. It presents in the serum as a pentamer. ये pentamer 5 इसके subunits होंगे. It constitutes only 10% of the serum immunoglobulin. It cannot cross the transplacental barrier. ठीक है, ये transplacental barrier को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब ये maternal blood से fetal blood में नहीं जा सकता. IgE जो है बेसिकली मोर स्पेसिफिक होता है पैरासिटिक और एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर. एलर्जिक रिएक्शंस जब होंगे और या जब पैरासिटिक रिएक्शंस होंगे उसके लिए जो मोर स्पेसिफिक आपकी जो एंटीबॉडी है दैट इज IgE. इट बाइंड्स टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स. बेसिकली जो है आपके एलर्जिक रिएक्शंस अभी हमने आगे पढ़ना है आगे हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर. उसके अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड द मास्ट सेल्स एंड समथिंग कॉल्ड द बेसोफिल्स दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. ये भी सेल्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स हैं और बेसोफिल्स जो हैं बेसिकली आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दे आर द ल्यूकोसाइट्स. It is responsible for mediating the type 1 hypersensitivity reaction through the release of mediators, example histamine. Yet again वही चीज आ गई, अभी हमने hypersensitivity reactions जो हैं वो discuss करने हैं. So this is the short form for hypersensitivity reaction. So more specifically जो IgE है वो type 1 hypersensitivity reaction के अंदर जो है it plays a role. It has the shortest half life. It present in small quantities. IgD क्या होता है? It is present on the surface of the lymphocytes. It is the least abundant of all and it's mainly intravascular distribution. So mainly जो है ये blood के अंदर within the blood vessel जो है ये present होता है. So अब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताती हूँ primary और secondary immune response के बारे में. So if I am infected by ये जैसे अब हम जैसे chicken pox की for example लेते हैं एग्जाम्पल. हर बच्चे को एटलीस्ट वंस इन हिज और हर लाइफ टाइम आप लोगों को चिकन पॉक्स जो है वो उसकी मैनिफेस्टेशन आती हैं, आपके बॉडी पे विजिकल्स बनते हैं, आपको फीवर होता है, आपकी तबीयत खराब हुई होती है, बट आफ्टर सम टाइम जो है यू रिकवर. सो बेसिकली अगर एक अनइन्फेक्टेड बंदा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अनइन्फेक्टेड, आई हैव नेवर बीन इन्फेक्टेड विद chicken pox in my entire life. So what will happen is that when I'm infected for the first time ever, so the immune response that is produced by my body is referred to as the primary immune response. उसमें क्या होगा बेसिकली कि मेरी बॉडी जो है अभी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर रही होती है, उसके एंटीजेंस को स्टडी कर रही होती है, वो देख रही होती है कि इसके अंदर एंटीजेंस कौन से स्पेसिफिक हैं, ये किस किस एरिया पे आके जो है वो आपको जो है वो डैमेज कर रहा है. ऑब्वियसली देखो कोविड वायरस के बारे में किसी को भी आज सच शुरू में इतना अंदाजा नहीं था कि वो लंग्स के अलावा भी आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो डैमेज करेगी. सो जो हमारी बॉडी है वो भी हाईली स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड यूनिट है, वो भी एक मतलब बहुत ही एक कंप्यूटर लाइक थिंग है. सो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अ बॉडी इज कि वो उसको स्टडी कर रही होती है कि इसका एंटीजन क्या है, अब मुझे कौन से प्लाज्मा सेल्स बनाने हैं, मुझे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भेजना है इसको डिफेंड करने के लिए. सो बेसिकली इट्स लाइक अ वॉर दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी, जिसके अंदर आपकी जो बॉडी होती है वो टोटली अनप्रिपेयर्ड होती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, और वो एकदम से उसके ऊपर हमला हुआ होता है और वो सारी प्लानिंग करी होती है कि मैंने इस सारे हमले को रोकना कैसे है, मैंने इसको डिफेंड कैसे करना है. तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम एंड द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको बनने में टाइम लगता है. आपके अंदर मेमोरी सेल्स कोई भी नहीं होते हैं. मेमोरी सेल्स क्या होते हैं बेसिकली आपके जो प्रीवियस इन्फेक्शन, अगर आप किसी चीज आपको इन्फेक्ट कर चुकी है आपको, सो अगर आपकी बॉडी दोबारा उसी चीज
से इन्फेक्ट होती है तो आपकी बॉडी के अंदर उस चीज से स्पेसिफिक जो है प्लाज्मा सेल्स भी पड़े होंगे, आपके बॉडी के अंदर टी सेल्स भी पड़े होंगे जो कि फॉरन एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। वो इतनी जल्दी प्रोड्यूस होगा कि आपकी बॉडी में सिम्टम्स नहीं आएंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के इसके अंदर जो है आपका बहुत एक स्लो रिलेटिवली रिस्पॉन्स होता है, और इसके अंदर जो है आपकी एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती हैं उनकी जो क्वांटिटीज होती हैं वो कम होती हैं, स्लोली प्रोड्यूस होती हैं। लिहाजा उस पैथोजन को या उस इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को इतना टाइम मिल जाता है कि वो आपकी बॉडी को इजीली अटैक करे और आपके अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस करे। बट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर व्हाट इज हैपनिंग इज के बेसिकली what is happening in a secondary immune response is when your body is again being attacked by that similar organism. So now your body is somewhat prepared. अब उसको पता होता है कि okay, I am prepared for this ऑर्गेनिज्म नाउ। सो उसमें क्या करेगी, वो आपको एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी जो कि इवेंचुअली जो है वो आपकी बॉडी से उस ऑर्गेनिज्म को इतनी जल्दी रिमूव कर देगा कि आपको बेसिकली सिम्टम्स जो हैं वो आपके अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। So it is a prompt, powerful, prolonged with more higher level of antibody production, predominantly IgG. So basically अभी हमने यही पढ़ा था डिफरेंस कि जो IgM होता है वो इमीडिएट या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर काम करता है, और IgG जो होता है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो काम करता है। Okay, let's study about major histocompatibility complex, or then we'll study about the hypersensitivity reactions in the next lecture, because these are a bit complicated and I want to spend some time on these. So, okay. So what is happening in major histocompatibility complex क्या चीज़ है? Honestly speaking, this is a bit complicated topic for me as well, but I'll try to explain to you what it is in simple terms. Major histocompatibility complex, जिसको आप MHC भी कहते हो, it is a group of genes that code for the proteins found on the surface of the cells that help the immune system recognize the foreign substances. MHC proteins are found in all higher vertebrates. In human beings, the complex is called the human leukocyte antigen system. So basically, अब HLA जो है या MHC जो है ये आपके सेलुलर लेवल से आगे थोड़े आगे चले गए, और ये थोड़े आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ गए, DNA लेवल पे आ गए, जीन्स के लेवल पे आ गए। So you have to just go back a bit and you have to think about the genes. So basically MHC क्या है, ये एक group of genes है जो basically it is encoding for all the proteins that are present on the surface of the cell that help the immune system recognize the foreign substance, ठीक है। So जो भी proteins जो हैं जो surface of cell पे पड़े हुए हैं और recognize that are helping the body to recognize the foreign substance is referred to as the major histocompatibility complex, ठीक है। जो ह्यूमन के अंदर ये दिस इज प्रेजेंट इन ऑल द हायर वर्टिब्रेट्स, मतलब मोस्टली जो यूकैरियोट्स होंगे, ये जो वर्टिब्रेट्स होंगे उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा। सो जो है ह्यूमन के अंदर जो ये जीन्स का एक कॉम्प्लेक्स है इसको आप कहोगे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। The function of the MHC molecules is to bind peptide fragments derived from pathogen and display them on the surface for recognition by the appropriate T cells. The consequences are almost always deleterious to the pathogen. Virus-infected cells are killed. Macrophages are activated to kill the bacteria living in the intracellular vesicles. B cells are activated to produce antibodies that eliminate or neutralize extracellular pathogens. Thus, there is a strong selective pressure in the favor of any pathogen that is mutated in any way that it escapes presentation by the MHC molecule. There is a strong selective pressure in favor of any pathogen that has mutated in such a way that it escapes presentation by the MHC molecule. So basically what is happening is कि ये जो हैं आपके MHC जो हैं molecules जो होते हैं, so they are basically a display system. ये display करते हैं एक चीज को,
मेरी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो एंटर होता है, उसके एक स्पेसिफिक कोई एंटीजन होगा जो कि मेरी बॉडी ने रिकॉग्नाइज करना है, जिसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना है। सो व्हाट द एमएचसी मॉलिक्यूल्स विल डू इज कि जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली मेरे मेरे जो सेल्स हैं उसके ऊपर जो है वो लगे हुए होते हैं। सो व्हाट विल हैपन इज कि वो उस पर्टिकुलर एंटीजन को रिमूव करेगा पैथोजन से और डिस्प्ले कर देगा उसको। आप वो डिस्प्ले कर देगा ताकि उसको इजीली जो हमारे सेल्स हैं इम्यून रिस्पॉन्स के, बेशक आप लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स की बात करो या आप टी लिम्फोसाइट्स की बात करो, वो उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सके और उसके खिलाफ जो है वो एक होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके। So basically it is, maybe it's like if I give you an example is कि अगर basically you can think of any virus or bacteria that is entering the body as the criminal, और जो MHC molecules होते हैं वो पुलिस होती हैं जो कि उन criminals को जो है वो फाइंड करती हैं कि वो कहाँ पे छुपे हुए हैं और उनको डिस्प्ले करती हैं, उनको सामने लाती हैं। और इवेंचुअली जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे आर दैट इज द जुडिशियल सिस्टम जो कि डिसाइड करता है कि अब इस क्रिमिनल का जो है वो फेट क्या होगा, इवेंचुअली उसके साथ इवेंचुअली होना क्या है। So basically the consequences that happen in response to the recognition are always deleterious for the pathogen. इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होगा that will be killed by the cytotoxic T lymphocytes. The macrophages जो होंगे वो activated होंगे to kill the bacteria living in the intracellular vesicles, and B cells are activated to produce antibodies that eliminate or neutralize the extracellular pathogen. नेक्स्ट आपके पास ये कहाँ पे होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 6 की शॉर्ट आर्म के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स कोड फॉर HLA प्रोटीन्स दैट आर यूनिक फॉर ईच इंडिविजुअल। HLA एसोसिएटेड जीन्स जो हैं वो कौन कौन सी डिजीजेस कौन सी होंगी कि अगर आपके पास HLA-B27 जो है वो नहीं प्रेजेंट या एब्सेंट है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस जो कि जॉइंट्स की आपकी एक डिजीज होती है। जो अगर आपके पास HLA-DR2 एब्सेंट है तो मल्टीपल सेक्लेरोसिस होगा आपके अंदर। मल्टीपल सेक्लेरोसिस जो है मोस्टली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो इन्वॉल्व करती है एक डिजीज वो है। अगर DR3 DR4 नहीं होगा तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। So there are two types, there are two classes of MHC molecules. Class 1 जो होते हैं they are coded by HLA-A, B, C genes. Genes जो हैं उनके नाम basically कौन कौन से हैं, A, B and C. They present on the membranes of the nucleated cells. ठीक है, ये nucleated cells के membranes के ऊपर होते हैं। सो ऑब्वियसली क्योंकि जो है रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होते, वो ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो लिहाजा they won't be present on the red blood cells. They are present on the platelets. They are recognized by the CD8 positive T cells and natural killer cells. NK cells और CD8 cells जो है वो उनको recognize करते हैं। They present endogenous antigens, example viral or cytosolic proteins to the CD8 positive T cells. So basically we have studied that CD8 positive T cells जो हैं, they are responsible for killing the virally infected cells or the neoplastic cells. So basically the MHC molecule will present the endogenous मतलब जो सेल के अंदर वाले एंटीजन्स होंगे उनको प्रेजेंट करेंगे। जो MHC2 होती है, क्लास 2 जो होती है, वो डबल आप डबल दो लेटर से आप डिनोट करोगे। देखो वो दैट इज कोडेड बाय DP, DQ and DR. They are present on the antigen presenting cells, B cells, macrophages and dendritic cells. So antigen presenting cells basically are the class of cells या overall is a category of cells जिसके अंदर आपके पास B cells आते हैं, macrophages आते हैं, dendritic cells आते हैं, जो कि एंटीजेंस को पकड़ के प्रेजेंट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स। सो बेसिकली जो है ये this is recognized by the CD4 positive T cells and they present exogenous antigens, for example bacterial proteins. So ये exogenous जो antigens होते हैं उनको present करने के काम आता है। MHC molecules all nucleated cells and platelet जो type 1 होंगी cell surface glycoproteins antigens, ये वही चीज़ है। और type 3 जो है वो complement system proteins. So most important is कि class 1 जो होती है
वो आपकी CD8 पॉजिटिव टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स रिकग्नाइज करते हैं, और क्लास 2 जो होती है वो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स जो हैं वो रिकग्नाइज करते हैं. So, if anyone has any questions, please let me know before I move on to your attendance. No, ma'am. एक्चुअली मैम मैंने आपसे थोड़ी सी बात Now, be please be attentive. मैम मैम पेंटावर क्या होता है? मैम आज सुबह ना मैंने क्या? देखा है मेरा जो मैं ना अमानिया ताहिर बात कर रही हूँ. सो मैंने आपको कुछ बताना है कि आज सुबह मैंने अच्छा. देखा तो मेरा ना जो जूम अकाउंट था ना वो फ्रीज हो गया था. सो मैं अभी जो आपकी क्लास ले रही हूँ ना अपनी एक कजन है उसके अकाउंट से ले रही हूँ. एक अच्छा घंटे तक ठीक है, मेरा that's not a problem. आप क्लास ले रहे हो? जी हाँ, मैम. that's not a problem. थैंक यू. Okay. Any more questions? मैम पेंटावर क्या होता है? जो जिसमें 5 सब यूनिट्स हों, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर 5 सब यूनिट्स होंगे तो दैट इज अ पेंटामर. Excuse me, ma'am. हाँ जी. मैम आपने हमारी असेसमेंट कब लेनी है? मतलब कि कोई भी मतलब कि असाइनमेंट वगैरह या कुछ भी? असाइनमेंट नहीं अभी लेनी मैंने आप लोगों से. मैंने आई विल आस्क फॉर अ वीडियो प्रेजेंटेशन एंड आई विल आस्क सम क्वेश्चंस. मतलब आप लोगों को बेसिकली मैं आप लोगों को ईमेल करूंगी अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर मे बी. आप लोगों के से मैं लूंगी एक वीडियो प्रेजेंटेशन. 5 मिनट्स की वीडियो प्रेजेंटेशन होगी. यू हैव टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर टॉपिक. और अब आई हैव टू डिसाइड कि आप लोगों से मैं स्लाइड्स पे लूंगी या मैं आप लोगों से आई माइट आस्क यू टू मेक इट ऑन चार्ट पेपर्स पे बनाओ और मुझे एक्सप्लेन करो. तो देन दैट वुड बी फॉलोड बाय 2 or 3 questions regarding that particular topic, and it will comprise about 20% of your असेसमेंट जो सेशनल आपकी असेसमेंट है. तो लेकिन अभी मतलब दैट इज आई एम स्टिल थिंकिंग कि मैंने किस तरह से आप लोगों का सारा करना है. लेकिन आप लोगों को ईमेल जो है बाय लेटर टुडे और टुमारो आई विल सेंड यू के इस तरह से जो है आप लोगों को होगा. बट बी प्रिपेयर्ड क्योंकि हर बच्चे को आई असाइन डिफरेंट टॉपिक. जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसमें से रैंडमली आई असाइन टॉपिक्स टू यू पीपल, एंड you can then prepare a presentation, and then we can have a video conference, and then you can show me whatever you have prepared, and I'll ask you questions regarding that topic, and you will be marked on that basis. ठीक है, presentation की basis पे और कितने questions आपने answer किए. अगर मैं 4 questions पूछ रही हूँ और अगर आप 4 के 4 answer कर रहे हो तो obviously आपको उसी हिसाब से marks मिलेंगे, और अगर आप एक भी आंसर नहीं कर पा रहे तो आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे. तो लेकिन Yes, ma'am. I'll आप send you a detailed email regarding this. ठीक है. ओके मैम, आप डेट कंफर्म कर दीजिएगा. Obviously I'll let you know way in advance for giving. ठीक है. मैम आपने जो एक Okay. असाइनमेंट ली थी Now वो moving on हमारी to आप your मार्क नहीं होगी क्या? मैम नहीं, assignments तो mark होंगी. Assignments तो ओके. mark होनी है. वो mark होगी. जी. हाँ जी, और कोई questions? email की थी regarding my network issue. क्या नेटवर्क इश्यूज है तो आप बस की थी अटेंडेंस अपनी regarding बोल दो, उसके बाद आप चले जाओ. network issue. मैम क्या ऐसा हो नहीं सकती मैम है मैंने हाँ आपको क्लास मैम. की ईमेल की थी. रिकॉर्डिंग्स एक यूट्यूब चैनल अगर बन जाए तो वो इजी हो जाता है. अगर कुछ मिस हो जाता है या कभी बंदा क्लास नहीं ले पाता तो वो वहां से रिकॉर्डिंग लेना कंपैरेटिवली इजी होता है. मैम वैसे मैंने कंपैरेटिवली आपको इजी मेल. तो होता है, लेकिन आप अपने ईमेल पे एक यस मैम. सेकेंड देखो, मेरी बात सुनो. आप लोगों को आफ्टर एवरी क्लास आई सेंड यू द जूम लिंक ऑफ द रिकॉर्डिंग.
अब आई डोंट थिंक सो कि दिस हैज एवर हैपेंड इन माय इंटायर मेडिकल करियर, या किसी भी बच्चे के करियर में ऐसा हुआ होगा कि जी क्लास भी ली जाती है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी भेजी जाती है, फिर उसकी स्लाइड्स भी भेजी जाती है। हम लोगों को टीचर्स आते थे, क्लास पढ़ाते थे, और उसके बाद जिंदगी में हमने वो दोबारा टॉपिक का नामो निशान नहीं सुनना होता था। आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग्स भी भेजती हूँ, मैं आप लोगों को लेक्चर्स भी भेजती हूँ, फिर भी आप लोग कहते हो नहीं मैम यूट्यूब पे करें क्योंकि हमें बहुत ईजी हो जाएगा। जो आपने 4 क्लिक्स करने हैं, आप पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी को सर्च करो, ईमेल आपकी फिल्टर हो जाएगी, आप उसके अंदर खोलो, रिकॉर्डिंग देखो, दैट्स नॉट इवन मैम अ बिग असल में इशू। ना, आप हाँ डेट्स के अकॉर्डिंग खोलो। मैम समटाइम्स मतलब जूम व्हाई इशू यू कर रहा ऑल होता है। नहीं तो फिर समटाइम्स यूट्यूब भी इशू कर रहा होता है। आई एम रियली रियली अनॉयड बाय हाउ यू पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल you are not I'm not talking about you specifically, I'm talking about the entire class in general. You people are not interested in listening or learning or doing anything. Most of you are asleep, most of you are not even present, and there are only some people who are actually listening. Secondly, why you always want कि आप लोगों को अच्छी तरह मैं पहले एक मोल्टन लावा केक बनाऊं, उसके साथ आइसक्रीम डालूं, सिरप डालूं, आप लोगों को आपके सामने रख दूं, आई एम डूइंग दिस, लेकिन आप फिर कहते हो मैम या मुझे खिलाएं भी, आप अपने हाथ से खिलाएं, बिकॉज आई कैन नॉट इवन मूव माई आर्म्स, मैं उसको हिला भी नहीं सकता। यूट्यूब पे करना, देखो आई एम ऑल्सो अ बिजी पर्सन, आई हैव माई एग्जाम्स टू टेक एज वेल. I will try to do this, but I'm not making any promises. But just go back to your emails and try to find out the links. Even if एक बच्चा आप में से कोई वो लिंक्स का एक कोई बना ले, कोई फोल्डर बना ले और आप लोगों को सेंड कर दे, अब सारा काम तो मैंने नहीं करना ना, आई एम नॉट हेयर टू feed you as well. So just try to move your arms and try to type and try to reach it out. इस तरह से नहीं होता ना, यू आर नॉट इवन प्रेजेंट, और सारे बच्चे मतलब पता नहीं क्या करते हो हर चीज, मैम यूट्यूब बना दें, ये कर दें, वो कर दें। मुझे मैम यूट्यूब का अलिफ बे भी नहीं पता, आई एम नॉट अ वेरी टेक्नोलॉजी वाला पर्सन। हाँ मैम जी, हाँ अगर जी। वर्ड पे सारे मतलब कि लेक्चर नंबर लगा के और मैं कॉपी पेस्ट कर दूं और सबको आपकी ईमेल से मतलब कि जो स्टूडेंट्स होते हैं तो ईमेल कर दूं। नहीं, that will be a very very huge favor for me if you can do this. You can send it to me and I can send it to all the students. ओके मैम। If you can do that, that will be really really nice. अगर ओके आप मैम। सारे जो है, क्योंकि इट्स नॉट अ बिग थिंग, आप लोगों ने एक्सक्यूज सिर्फ मी आपने मैम। सिर्फ पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी लिखना है। हाँ जी, हाँ जी। यस मैम, आ जाती हैं सारी मेल्स। मैम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब जी थी 1-2 प्लीज। दिन से और मुझे असाइनमेंट का पता नहीं चला, तो मैं बना के सबमिट करा दूँ? असाइनमेंट आपको पता है कि कब आपको दी थी मैंने? आई डोंट इवन नो, इट्स इवन इट, ये मतलब रिमोट हिस्ट्री हो गया। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोविड भी हो गया था तो फिर भी 14 दिन से ज्यादा तो वो नहीं रहता है, और आई थिंक 14 दिन से ज्यादा ही हो चुके हैं, उससे पहले ही मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। नो, लेट सबमिशंस आर मैम नॉट मुझे अलाउड। सीरियस में पता आप नहीं लोगों के चल साथ रहा। मुझे करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट यू मैम हैव कॉल्ड प्लीज़। फॉर यू। नहीं, यू गाइज हैव बीन ऑलवेज सो non-serious about this entire class कि I really don't know what to do with you people. And अब आप लोगों को इतना नहीं अंदाजा कि मैंने आप लोगों का वाइवा लेना है, मैम and you मैंने will be लेट in front ज्वाइन of me किया and था। I'll be marking you and I'll be grading you. Yeah, just and then come to my office and talk to me in person. I have no other, मतलब अगर आपकी इतनी है फिर सारी मुझे रिपोर्ट्स दिखाओ, आप मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनीथिंग। आपने जो किया था, देखो असाइनमेंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने आप लोगों से हैंड रिटन असाइनमेंट भी नहीं कहा था। आप अपने छोटे भाई बहन को कह सकते थे यार इस टॉपिक को कॉपी पेस्ट करो और भेज दो, इट्स नॉट इवन अ बिग डील, ठीक है? बट यू शुड जस्ट बी विजिलेंट इनफ टू रीड योर ईमेल्स। अब आई एम मार्किंग योर अटेंडेंस, प्लीज डोंट पिस मी मोर। अहमद नदीम, मैं 2 यस दफा मैम। नाम बोलूंगी, तीसरी दफा नाम नहीं बोलूंगी, और प्लीज डोंट कम, ओके? एमन हबीब, Present, ma'am. ओके। एमन नसीर, प्रेजेंट मैम। अमानिया ताहिर, अक्सा अक्सा जावेद, प्रेजेंट मैम। अतिया कयूम, Present, ma'am. आयशा 1169, Present, ma'am. आयशा 1169, ओके। आयशा हसन, प्रेजेंट मैम। Present, ma'am. Present.
ओके, आयशा मुगल। आयशा मुगल। बिस्मा शाहिद। बिस्मा शाहिद। दुआ खान। Present, ma'am. फरा नूर। Present, ma'am. फरीहा फातिमा। Present, ma'am. मैम मेरी अटेंडेंस हो गई। फातिमा 1 2 0। यार अभी मैं लिटरली एफ पे पहुंची हूँ, आपकी कैसे अटेंडेंस हो सकती है? मैम हाँ यार, मैम मैं क्या बच्चे हो सारे लिटरली। मैम मैं फरा नूर। फरा नूर, हाँ हो गई आपकी, मुझे लगा कोई और बोल रहा है। अच्छा ओके फातिमा, थैंक फरा यू। नूर आपकी हो गई Present, है। ma'am. फातिमा 1205। Present, ma'am. फातिमा नासिर। गालिया खान। Present, ma'am. गानिया खान। Present, ma'am. गुलशन सलीम। Present, ma'am. हाफिज मोहम्मद सलमान। प्रेजेंट मैम। हिरा अहमद। हिरा अहमद। हिरा अहमद प्रेजेंट हो? नहीं। हुमैरा सईद। हुमैरा Present, ma'am. सईद। Present, ma'am. इफ्रा अली। इफ्रा Present, अली। ma'am. अरीज Present. आमिर। इज़ा इलाही। इज़ा इलाही। मैम इज़्ज़ा का माइक का इशू है। वो मेरे पास पार्टिसिपेंट्स में आ रही है कि नहीं आ रही है? इफ्रा अली प्रेजेंट हो? यस मैम मैं प्रेजेंट हूँ। इज़्ज़ा पार्टिसिपेंट्स में है, उसका माइक का इशू है। लेकिन पार्टिसिपेंट्स में आ रही है मैम, आ रही है। कौन? इज़ा इलाही? यस मैम। I don't see her. Let me see again. किधर है यार? हाँ ठीक है, ओके ठीक है, शी इज प्रेजेंट। थैंक यू मैम। अरीज आमिर किधर है? अरीज आमिर। अरीज आमिर। कशफ मकसूद। प्रेजेंट मैम। कशफ मकसूद। ओके, किरण रानी। Present, ma'am. किरण। ओके, Present, ma'am. महनूर आसिफ। प्रेजेंट। महनूर। महनूर लियाकत। महनूर लियाकत। मलाइका ताहिर। प्रेजेंट मैम। मलिक मोहम्मद हसन। Present, ma'am. मनाहिल कामरान। मनाहिल कामरान। मारिया शौकत। प्रेजेंट मैम। मरियम इम्तियाज। प्रेजेंट। मनाहिल शहजाद। मनाहिल शहजाद। मोहम्मद अब्दुल्ला। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अब्दुल्ला। ओके। प्रेजेंट मोहम्मद मैम। अबू बकर। यस मैम। मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट हो? मोहम्मद अब्दुल्ला। यस यस मैम। प्रेजेंट। ये आप लोगों की क्या आवाज़ है, मुझे सेम क्यों लग रही होती है बच्चों? मैम मोहम्मद अबू बकर भी प्रेजेंट है। मैम मोहम्मद प्रेजेंट हूँ।
अच्छा ठीक है Raise my hand. नेक्स्ट अप इज मोहम्मद आमिर ताहिर. Present, ma'am. मोहम्मद हामिद. Present, ma'am. मोहम्मद राफे. Present. मुकद्दस जहीर. प्रेजेंट मैम। नादिर हुसैन. Present, ma'am. नेहा. प्रेजेंट मैम। नदा असलम. प्रेजेंट मैम। निमरा शहजाद. निमरा शहजाद. नूर फातिमा. प्रेजेंट मैम। नुदरत नूर. प्रेजेंट मैम। रिमशा. प्रेजेंट। रिमशा इजाज. रिमशा इजाज. रिजवानुल हक. Present. सादिया बदर पराचा. सादिया बदर पराचा. सादिया सैफ. प्रेजेंट मैम। सज्जल खान. प्रेजेंट मैम। सना इकबाल. प्रेजेंट मैम। सना ओके. सना जावेद. प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ओके. सनम रफीक. प्रेजेंट मैम। सारा रियाज. प्रेजेंट मैम। सिमाब प्याज. प्रेजेंट। सहर नदीम. सहर नदीम. शर्जील अरशद. Present, ma'am. शिजा फारूक. प्रेजेंट मैम। शिफा उमर. प्रेजेंट मैम। शमाइला कौसर. प्रेजेंट मैम। सिद्रा अब्बास. प्रेजेंट मैम। तैमूर मुजाहिद. तैमूर मुजाहिद. उमैर अहमद. Present, ma'am. उमैर अहमद. उम्मे एमन. उम्मे एमन. उसामा इरशाद. प्रेजेंट मैम। वर्दा फातिमा. वर्दा फातिमा. ज़ैनब महबूब. प्रेजेंट। जिले हुमा खान. प्रेजेंट मैम। हुमा. प्रेजेंट मैम। ओके प्रेजेंट ओके मैम। ओके. आपको अटेंडेंस होगी. आप बताएं अपने क्वेरीज बताएं, अपने क्वेश्चंस बताएं. हमारा मैम ये हो गया, वो हो गया, एक्सक्यूज मी फलाना हो मैम। गया, ढमकाना हो गया. हाँ जी हाँ जी. मैम Excuse me, आयशा ma'am. मुगल इज हाँ जी. प्रेजेंट। मैम मेरी भी मार्क नहीं हुई। आप कहाँ थी पहले यार? यार मार्क नहीं हुई का क्या मतलब होता है? मैं आपका नाम बोलती हूँ, मैं 5 सेकंड वेट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा नाम बोलती हूँ, मैं फिर 5 सेकंड वेट करती हूँ, फिर उस दौरानिये में भी अगर आप लोग की मार्क नहीं हुई है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती.
आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों के साथ यही एक काम हो सकता है, मैं एक दफा नाम बोलूंगी, दूसरी दफा नाम बोलूंगी, पॉज होगा दरमियान में, दूसरे के दरमियान, दूसरे के बाद भी पॉज होगा. इफ यू आर नॉट कॉलिंग आउट योर प्रेजेंट, देन यू आर नॉट प्रेजेंट. I cannot do about anything about it. I'm sorry. Any more queries except मैम वो मेरी वाली friend असाइनमेंट मैंने मार्क नहीं सबमिट हुई थी, मेरा कराई माइक थी। खराब हो गया था, मेरा सर पे मैम छत गिर सॉरी वो गई मुझे थी, पता नहीं जलजला चल आ रहा गया था। था. अच्छा ठीक है, अगर आपने करवाई थी तो यू विल बी मार्क्ड ऑब्वियसली, बट अगर आपने नहीं कराई थी तो यू वोंट बी मार्क्ड. मैम बस मुझे लगा शायद उसके एंड ऑफ बाद भी स्टोरी. कोई मिली है। नहीं नहीं, कोई नहीं मिली, सिर्फ एक असाइनमेंट थी, बट अभी जो चीज मिलेगी, यार आप लोग ईमेल्स अपनी नहीं पढ़ते हो भी, आप लोग एटलीस्ट ईमेल्स तो चेक कर लिया करो ना. अब टीचर बैठ के लंबी ईमेल लिख रहा होता है, अगर आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो तो व्हाट इज द पॉइंट. मैम पढ़ते हैं रोज, हर चेक योर ईमेल पढ़ते ईमेल्स. हैं। नो मैम ऐसी बात तो नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स नहीं खोलते तो अब उनका मैम है ना हम इशू. लोग तो रोज ही नहीं नहीं, पढ़ते हैं, आई एम रोज नॉट से टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ यू. I am not talking about all of you. There are certain really nice students amongst you, but there are certain people जो कहते हैं मैम हमें नहीं पता था ये क्या हो गया ऐसा वैसा. तो फिर obviously अब आप मेरी जगह पे सोचो तो फिर obviously I'll be pissed off. तो लेकिन be prepared कि I'll send you कि आप लोगों की जो मैंने वीडियो प्रेजेंटेशन लेनी है वो क्या होगी और किस टॉपिक पे होगी, तो be prepared for that. ठीक है. और कोई questions हैं? तो मैम क्विज नहीं ना होगा बिल्कुल भी? नहीं, क्विज नहीं होना, लेकिन आप समझ लो मैंने सॉर्ट ऑफ एक मिनी वाइवा लेना है आप लोगों का, ये समझ लो, इस हिसाब से तैयार हो जाओ. क्विज नहीं होगा. अच्छा जी, और कुछ? अगर क्वेश्चन खत्म है तो चलो सारे जाओ, यू कैन लीव द क्लास. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑन थर्सडे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम.